Good morning, everyone. Till now, we have done two chapters. Chapter one was dynamic of communication, and the second was technical writing. Okay. Now, today we are going to start chapter three, that is technical communication. So, students, as we know that communication means uh, share your ideas or opinions, right? So, basically, technical communication means technical communication, यानी कि communication on the technical topics. Okay, it may be regarding to computer files or medical process or whatever. Okay, so technical communication is very important for engineers. It deals with conveying the information, whether it is scientific, technical, or engineering, in variety of context. Various sets of methods are used for technical communication. The goal of technical communication is to make information easily accessible to specific audience for the specific purpose. It is achieved through various techniques like public speaking, group discussion, presentation strategies, interview skills, etc. Okay, so these are some techniques that is related to the technical communication. First, we will go for the public speaking. So public speaking, it also called oratory or oration. It has traditionally meant the act of speaking face to face to a live audience. Today, it includes any form of speaking formally and informally to an audience, including pre-recorded speech delivered over great distance by means of technology. अगर हम ट्रेडिशनल मतलब देखें तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ स्पीकिंग फेस टू फेस towards the audience, live audience के सामने हम face to face जो बोल रहे हैं, that was the public speaking only. Now with the advancement of technology, we can communicate with the public over the long distances. Okay, टेक्नोलॉजी को अब घर बैठे लेक्चर ले सकते हैं, ऑनलाइन जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है. Okay, so basically public speaking means speaking in front of public. आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कोई स्पीच दे रहे हो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. Now, what is the importance of public speaking? Good public speaking skills can have a huge impact on your career for the following reasons. First thing आती है, it demonstrates your knowledge. पब्लिक स्पीकिंग जो है उससे आपका जब आप लोगों के सामने बोलते हो तब लोगों को पता चलता है आपके नॉलेज का, आपके पास कितना नॉलेज है. अब सपोज आपके पास बहुत सारा नॉलेज है बट आप उसको शो ही नहीं कर पाओ, शेयर ही नहीं कर पाओ, अपनी थॉट्स को शेयर ही नहीं कर पाओ, तो आपका नॉलेज वर्थ क्या रह जाता है. Okay, so you are always at your best when you can articulate your thoughts clearly and effectively. Public speaking skills help you do exactly that. After all, the true worth of the knowledge you possess can only be realized when you can show and apply it. It demonstrates your confidence. आप जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपना प्रेजेंटेशन स्पीच तैयार करते हो तो ऑब्वियस सी चीज है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो वो आपका नॉलेज इंक्रीज करता है, ऑब्वियस सी चीज है. ओके, उसके साथ साथ वो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करता है. जब आप लोगों के सामने बोलते हो तब आपका कॉन्फिडेंस भी वो क्या इंक्रीज होता है. So not only does public speaking increases your knowledge during the process of preparation, but it also develops and demonstrates your confidence. Whether you are interviewing for a job or hoping for a promotion, your confidence is what will make you stand out among other candidates. नॉलेज विद कॉन्फिडेंस होना रिक्वायर्ड होता है. अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या जॉब में जाते हो तो आपको प्रमोशन की रिक्वायरमेंट के लिए आपका नॉलेज भी होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए. आप इतने कैपेबल इनफ होने चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ इफेक्टिवली, आप अपने ओपिनियन, आप अपने आइडियाज, आप अपने नॉलेज को शेयर कर पाओ लोगों के सामने इफेक्टिवली. तो आपके चांस जो है हर चीज में, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के, प्रमोशन के चांस जो है वो आपके इंक्रीज होते हैं. It helps you lead better. The higher you climb up the career ladder, the greater will be the number of people you shall have to lead. As a result, the need for public speaking skills and the confidence pertinent to it also increases, making it one of the determining characteristics when considering someone for promotion. जितना आप अपने करियर में आगे जाओगे उतने ही ज्यादा आपके चांस बढ़ते जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग के. आपको लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा, लोगों के साथ साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जितना आप अपने करियर को आप करियर ग्रोथ पे जाओगे, है ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ जाती है कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपनी डेवलप करो, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो. देन हाउ टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. अभी हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाओ, आपने देखा कि पब्लिक स्पीकिंग आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, आपका नॉलेज शो करता है. ओके, बट इस स्किल को हम कैसे इंप्रूव करें? तो फर्स्ट थिंग आती है प्रिपेयर विद प्रैक्टिस. कोई भी चीज हो, भले आप एग्जाम भी दे रहे हो तो आपको प्रैक्टिस रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना. तो
अगर आप कोई भी अपना प्रेजेंटेशन, स्पीच रेडी करते हो, तो उसकी आपको मतलब जितना जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए बोलने का, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करो। या तो आप अकेले करो या फिर अपने घरवालों के सामने, जो भी आपको लगता है कि इसके सामने में मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो गो विथ कॉन्फिडेंस, गो विथ योर प्रैक्टिस। Okay, so once you have prepared a presentation or a speech by giving it a logical flow and making it more vibrant with the addition of examples, stories, and visually appealing props, only then your true preparation begins. If you are wondering what that means, remember that practice is the key to preparation. Practice your speech or presentation alone or seek to speak it in front of other people until you can speak fluidly with confidence and comfort. This may sometimes require you to tweak your words during practice, but it's preferable to do so in practice instead of doing so at the occasion where you intend to take the mic. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मैं कुछ वर्ड्स गलत बोल रहा हूँ, कई चीजें मैंने कहा सेंटेंस गलत बोल दिया है या मैं कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो आपको उसमें चेंज करने के आपके पास चांस होंगे। बजाय उसके कि आप सीधा पब्लिक के सामने बोलो और वहां आपको रियलाइज होके कि यस आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। ओके, सो गो विद योर प्रैक्टिस। ओके, देन सेकंड, accentuate your strength. Analyze yourself as a public speaker and identify your true strengths and weaknesses. Most of us tend to imitate other public speakers who are popular amongst the crowd. However, the best way is to be yourself and focus on your own strengths. For instance, you might have a good sense of humor that helps in grabbing attention of the crowd. You may be an interesting storyteller, or you may be good at clearly explaining complex ideas. Whichever is your strength, utilize it wisely to keep your audience paying attention. कई बार हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब जो फेमस हैं, जो पब्लिक स्पीकर, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट जब भी आप किसी की कॉपी करते हो ना, तो आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। रेदर देन दैट, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीच, अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। सबकी अलग-अलग क्वालिटी होती है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कि किसी चीज में अच्छा होता है। तो नो योर स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। देन लास्ट वन इज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन टू फीडबैक। आप अपने ऑडियंस का फीडबैक जरूर देखो, और अगर फीडबैक ऑडियंस अगर डायरेक्टली नहीं दे पा रही, अगर टेक्नोलॉजी का हिस्सा में काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑडियंस का आप नहीं ले पा रहे हो, मतलब नहीं ले पा रहे हो, जहां तक होनी चाहिए आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप ऑडियंस का फीडबैक लो, है ना। नहीं तो अपने बॉडी एक्सप्रेशन से, फेस टू फेस एक्सप्रेशन से आप देखो, अगर आप फेस टू फेस अगर आप कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है आई कांटेक्ट के थ्रू कि ऑडियंस कितना इंटरेस्ट ले रही है आपके स्पीच में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम हमारी जो है स्पीकिंग जो स्किल्स है उसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। So although all sorts of public speaking do not involve direct interaction between the speaker and his audience, there are various ways in which audience is able to provide feedback. If the audience cannot speak their opinion out loud, as a speaker, you should be able to look for non-verbal cues such as the body language or facial expressions of the audience. The feedback thus provided by the audience can prove to be a helpful guide in improving one's public speaking skills. So ये हमारा आज का टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ओके, अब हो सकता है वो फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, जो भी है टेक्नोलॉजी के यूज से। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने देखी कि भले हम किसी भी फील्ड में जाएं, भले वो ऑफिस में जाएं, भले हम मतलब ऑफिस में प्रमोशन में देखें या इंटरव्यू के लिए जाएं, तो पब्लिक स्पीकिंग जो है हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है हमारी इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट होती है। जितना आप करियर ग्रोथ पे जाओगे, आपको पब्लिक स्पीकिंग को फेस करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसकी इसकी हमने देखे कि हाउ टू इम्प्रूव, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। सबसे पहले हमने देखा कि हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, हमने देखा हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है, हमें हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमारे स्पीच, हमारी प्रेजेंटेशन रेडी करना है। देन थर्ड वन इज ऑडियंस का फीडबैक रिक्वायर्ड है। आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कि ऑडियंस कितना आपका स्पीच को समझ रही है। ओके, थैंक यू ऑल।